जी दोस्तों, मेरे वालों यानी कि राजीव अरोड़ा वालों बहुत ही प्यार ते सत्कार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। मैं एक होर एपीसोड राजीव अरोड़ा अनसैंसर्ड ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖੀ ਹੌਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, हाउ टू मेक फ्रेंड्स, हाउ टू विन फ्रेंड्स, हाउ टू इम्प्रेस पीपल, कैसे आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, कैसे अपने नए दोस्त बना सकते हैं, इस विषय पे। और इस तो अलावा एक और किताब सी हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, चिंता छोड़ो सुख से जियो, हिंदी ਉਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੁੱਕਸ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਡੇਲ ਕਾਰਨੀਗੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਤਾਂ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ। ਔਰ ਜੌਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਖੇੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗੀ ਜੀਤ ਆਪਕੀ, ਹਾਊ ਟੂ ਵਿਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ 2.5 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਸੁਣਿਆ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰਸ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਇਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਕਿੱਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਪੇਡ ਲੈਕਚਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਫਿਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਆਫਿਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਚਿਸ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਦੱਸਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਈਫ ਕੋਚਿਸ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੋਚਿਸ, ਇੰਟੀਮੇਸੀ ਕੋਚਿਸ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਬੂਬਾ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਫ ਕੋਚਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਢੂੰਢਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਤਿਆਗੀ ਜੀ। ਸਾਗਰ ਤਿਆਗੀ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਕੋਚ ਹੈ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਗਿਆਸਾਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਗਰ ਤਿਆਗੀ ਜੀ ਨਾਲ। ਸਾਗਰ ਤਿਆਗੀ ਜੀ, ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ बहुत बहुत स्वागत ਤੁਹਾਡਾ। माय प्लेजर, माय प्रिविलेज दैट मैं आज आपके पहले पॉडकास्ट का पार्ट हूँ जी। और बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके साथ, आपके बारे में सुना, आपसे मुलाकात हुई आज जी, तो बहुत अच्छा लगा कि आपके साथ मेरे को बैठने का मौका है, बात करने का मौका है। थैंक यू। सो दर्शकों, हिंदी भाषी है साढ़े मेहमान और इस करके मैं सवाल जवाब का सिलसिला भी नाल हिंदी 'ਚ करूँगा क्योंकि असी पंजाबी सारे हिंदी भी समझ ही जाते हैं। सो सागर त्यागी जी, ये जो सवाल है कि क्या अब सहजता से ज़िंदगी को जिया नहीं जा सकता, अब मुझे स्कूल में एक काउंसलर की ज़रूरत है, फिर करियर काउंसलर की ज़रूरत है, फिर अपनी महबूबा से कैसे संबंध रखूँ, इंटीमेसी या रिलेशनशिप कोच की ज़रूरत है, उसके बाद जब मैं ज़िंदगी जीने लगूँ तो फिर मुझे एक कोच की ज़रूरत है। हमारे जीवन में ऐसा क्या हो गया, क्या कॉम्प्लेक्सिटी आ गई कि हर स्टेप पे हमें काउंसलर की एक असिस्टेंस की ज़रूरत है ज़िंदगी जीने के लिए? राजीव जी देखिए, सहजता से ज़िंदगी जीने के लिए ही कोच की ज़रूरत पड़ती है जी। हम नॉर्मली सहजता के साथ ज़िंदगी नहीं जी पाते। एक्चुअली में मेरे पास जितने भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं जिनको मैं कोचिंग देता हूँ या मैं काउंसलिंग करता हूँ, कॉर्पोरेट हो या पर्सनल हो,
तो उनको अल्टीमेटली तो मैं सहजता की तरफ ही ले जा रहा हूँ। दिक्कत ये है कि हम सहजता की तरफ खुद से जा नहीं पा रहे हैं। लेकिन हाँ, हर एक पर्सन अलग है, हर एक इंसान की बैकग्राउंड अलग है, उसकी पास्ट अलग है। तो जिस तरह से हमने जो चीज़ें देखी हैं अपने पास्ट में, वो डिटरमाइन करती हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होने वाला है। जी जी जी। और इंडिया में खासकर हिंदुस्तान में जहाँ हम रहते हैं, हम लोग अगर फॉर एग्जांपल मैं आज 46 ईयर्स ओल्ड हूँ, अगर कोई 30 साल का है, 25 साल का है, 50 साल का है, तो उसने वो स्ट्रगल पीरियड सबने कुछ ना कुछ ज़रूर देखा है, क्योंकि हमारी कंट्री इज़ गोइंग थ्रू दैट इकोनॉमिक जोन, इकोनॉमिक टाइम व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम अ अंडर डेवलप्ड कंट्री टू अ डेवलप्ड कंट्री एंड नाउ मूविंग टूवर्ड्स डेवलपमेंट। मतलब मोदी जी ने बोला है जैसे कि हम जी, चलो मैं शायद अपने जीवन काल में वो दिन ना देख सकूं ना, तो 2047 का टारगेट फिक्स किया। खैर सवाल ये था कि आज से 3 दहाके पहले तक जी हम सभी लोग जी रहे थे ना, हम करियर भी अपना बना रहे थे, जिंदगी भी जी रहे थे, और तब तक हमें ये कोचेस की, ये काउंसलर्स की जरूरत नहीं थी। आज पिछले 2.5-3 दहाके से, जब से सोशल मीडिया चलो आना शुरू हुआ, 1-1.5 दहाके की बात ले लो, क्यों ऐसे एक जरूरत पैदा कर दी कि कोच के बिना हम जिंदगी जी ही नहीं सकेंगे पूरी खुशी से। क्या हम ये सोचे कि 2.5 दहाके पहले तक या 30 साल पहले तक, 25-30 साल पहले तक कोई बंदा अपनी संपूर्ण जिंदगी जी ही नहीं रहा था? ऐसी बात नहीं है। बहुत लोग उस टाइम पे भी अपनी संपूर्ण जिंदगी जी रहे थे, और हमारे ग्रंथों में, हमारे माइथोलॉजी के अंदर, स्पेशली इंडिया में, हमारे लिए ये एजुकेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। और आज से या पिछले 30 साल से नहीं, हज़ारों सालों से। और हम अपने बड़ों को देखें, अपने सीनियर्स को देखें, तो जो चीज़ आज मैं अपनी कोचिंग में बात करता हूँ, मैं बहुत सारी बातें भगवत गीता की करता हूँ फॉर एग्जांपल, उधर से बहुत सीखने को मिलता। तो इस तरह की एजुकेशन वाज ऑलवेज अवेलेबल। बट आपने बहुत सही बोला कि जब से सोशल मीडिया का दौर आया है, तो चीज़ें और ज़्यादा, कम्युनिकेशन हैज़ बिकम वेरी वेरी फास्ट नाउ। पीपल हु आर एन यंग जनरेशन, आज की डेट में जो यंग जनरेशन है, वो हर चीज़ सोशल मीडिया पे देख रही हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कोचेस को भी मौका मिला है अपनी बात आगे बढ़ाने का। अब हर कोई टीवी पे तो नहीं जा सकता, हर कोई इतनी महंगी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता, लेकिन सोशल मीडिया हैज बिकम सच अ प्लेटफॉर्म टुडे कि हर पर्सन अपनी बात रख सकता है। और जैसे मैंने आपको कहा, मैं भगवत गीता की बहुत सारी बातें करता हूँ अपनी कॉन्वर्सेशंस में, एंड इट हैज़, उसके अंदर सारी डिस्टिंक्शंस अवेलेबल हैं जो कि जिससे मैं एक पर्सन को ट्रांसफॉर्मेशन कॉज करा सकता हूँ। जी। तो वो एजुकेशन वाज अवेलेबल ऑलवेज। जी, तो ये जो टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, साइंस आई, ये इतना कुछ आ गया कि इतनी ज़रूरतें हमारी बढ़ गई। क्या ये जो एक रैट रेस शुरू हुई, यानी टेक्नोलॉजी वाज मेंट टू इम्प्रूव आवर लाइफस्टाइल, हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम ये सोच रहे थे कि मोबाइल आ गया, ये सॉफ्टवेयर इतने सारे आ गए, कंप्यूटर, इंटरनेट, और जैसे मैंने वो दिन भी देखे हैं कि घर में कोई इमरजेंसी होती थी तो कई दिन आप कोई 200-400 किलोमीटर दूर बैठे बंदे से भी संपर्क नहीं कर पाते थे। और आज स्थिति ये है कि विद इन सेकेंड्स, इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, आप बिल्कुल आमने सामने अपने मोबाइल की स्क्रीन से बात कर लेते हैं। यानी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, ये जो अब फ्लाई कर सकते हैं, नज़दीक हमारे एयरपोर्ट्स आ गए, तो सारी चीज़ में इतनी तरक्की हुई। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि ये प्रभाव मिलने लगा कि इतनी सुविधाओं के चलते, इतनी टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के चलते हमारी ज़िंदगी में खामियां, उदासियां, ज़रूरतें अचानक बहुत बढ़ गईं, और सुसाइड रेट बहुत बढ़ गया, और डिप्रेशन के केसेस, और इसके अलावा साइकेट्रिस्ट कितने आ गए। पहले बठिंडा सारे में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक भी साइकेट्रिस्ट नहीं था, और एक साइकेट्रिस्ट आया बाद में। अब शहर में ही लगभग 10-12 साइकेट्रिस्ट हैं, और स्मॉल टाउन्स में भी आ गए। तो ये क्या टेक्नोलॉजी के विकास का और ये जो मानसिक सेहत का आपस में कोई कनेक्शन है? बिल्कुल। मेरा व्यू ये है कि टेक्नोलॉजी जितने जैसे एडवांस हो रही है, उतना ज़्यादा हमारे स्ट्रेस लेवल भी बढ़ रहे हैं जी। और जिस तरह से स्ट्रेस लेवल बढ़ रहे हैं, तो हमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे अगर किसी को डायबिटीज़ है फॉर एग्जांपल, वो डॉक्टर के पास जाएगा, खुद से अपना इलाज नहीं करेगा जी। तो उसी तरीके से अगर किसी को स्ट्रेस है, या कोई एंग्जाइटी से डील कर रहा है, या कोई स्ट्रेस फील कर रहा है कि मेरे को फ्यूचर क्रिएट करना है, करियर क्रिएट करना है, या कोई बिजनेस में स्ट्रेस में है, तो वो एक काउंसलर, एक कोच के पास जा सकता है। और
जैसे आपने बोला टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के कारण आज हमारे पास वो एक्सेस बहुत इजीली अवेलेबल है। ऑनलाइन कोचिंग बहुत पॉपुलर है आज की डेट में, ऑनलाइन काउंसलिंग। मेरे पार्टिसिपेंट्स यूएस में भी हैं, दुबई में भी हैं, लंदन में भी हैं, जिनको मैं दिल्ली में बैठ के वहाँ पे उनको कोचिंग देता हूँ अपने ऑफिस से। तो एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इज आई थिंक लिंक्ड बोथ increasing of stress and the demand of this kind of work, and also दुनिया छोटी होती जा रही है जी। मेरे लिए लंदन के पार्टिसिपेंट से बात करना इज ऑलमोस्ट लाइक कि मैं दिल्ली में ही हूँ और दिल्ली के पार्टिसिपेंट से बात कर रहा हूँ, एक फ़ोन कॉल, एक व्हाट्सएप कॉल अवे या फिर एक जूम कॉल अवे। इट्स लाइक दैट। मेरा ये था कि अगर किसी को डायबिटीज़ है या कोई मानसिक रोग है तो वो एक माहिर डॉक्टर के पास जाता है जिसने MBBS MD की और इसके आगे सुपर स्पेशलाइजेशन भी है। लेकिन ये जो लाइफ कोच, रिलेशनशिप कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, इंटीमेसी कोच, ये कौन सी डिग्री हासिल करते हैं, क्या इनकी क्वालिफिकेशन होती हैं, क्या रिसर्च है, क्या डेटा है, क्या ऑडिट है, इसके बारे में जानने की बड़ी जिज्ञासा है। मतलब ये इतने लोग जो आ गए, इनका अपने क्रेडेंशियल्स क्या हैं? सबके अलग अलग क्रेडेंशियल्स हैं। जैसे अगर आप डॉक्टर हैं, फॉर एग्जांपल मेडिकल डॉक्टर हैं, तो आपके पास डिग्री है, आपके पास MBBS है, MD है। उसी तरीके से अगर आप लाइफ कोच हैं या बिजनेस कोच हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ क्रेडेंशियल होने चाहिए। चलो, मेरी जिज्ञासा मेरे आज के मेहमान से है, श्री सागर त्यागी जी से। आप इस मुकाम तक कैसे पहुंचते हैं कि यू क्लेम टू बी अ लाइफ कोच? जी, थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। सो मैंने एक प्रोग्राम किया था, एक ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है लैंडमार्क एजुकेशन जी। और मैंने इनके प्रोग्राम किए थे एज अ पार्टिसिपेंट 2003 में, मतलब ऑलमोस्ट 22 ईयर्स बैक, 23 ईयर्स बैक। और उस टाइम पे मैंने एज अ पार्टिसिपेंट किया। तब आप क्या कर रहे थे? तब मैं होटल इंडस्ट्री में जॉब करता ठीक था। है। आई वॉज वर्किंग इन द होटल इंडस्ट्री एंड मैंने उनके कोर्सेज किए, एडवांस कोर्सेज किए, जो 3-4 लेवल कोर्सेज थे वो किए। उसके बाद मेरे को उससे इतनी ट्रांसफॉर्मेशन मिली अपनी लाइफ में, मेरे बिजनेस के अंदर, सॉरी मेरी जॉब के अंदर, मेरी रिलेशनशिप्स के अंदर, मेरी पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ के अंदर, दैट आई गॉट रियली इंस्पायर्ड बाय दैट एजुकेशन। सो स्लोली आई स्टार्टेड बीइंग पार्ट ऑफ दैट एजुकेशन। मैंने अपनी होटल इंडस्ट्री भी छोड़ दी आफ्टर फ्यू ईयर्स एंड आई जॉइंड दैट एजुकेशन सिस्टम एंड आई वाज विद दैट एजुकेशन सिस्टम फॉर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। सो मैंने वहाँ पे प्रोग्राम्स भी लीड किए, ट्रेनिंग भी दी लोगों को, पर्सनल कोचिंग एंड डेवलपमेंट, प्रोफेशनल कोचिंग एंड डेवलपमेंट। एंड वहाँ पे मैंने जो 20 साल में एक्सपीरियंस हासिल किया, हज़ारों नहीं लाखों लोगों की लाइफ में डिफरेंस मेक करने का मौका मिला। और ऐसी ऐसी चीज़ें राजीव जी हम कॉज कर पाए उसके थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल, एक भाई दूसरे भाई से पिछले 40 साल से बात नहीं कर रहा है, हमारे प्रोग्राम करने के बाद वो वापस उसके साथ कनेक्ट हो गया। या एक बेटा अपने फादर से दूर हो चुका है, रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ मैं, वो वापस अपने फादर के पास चला गया 3 दिन के प्रोग्राम के बाद। इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशनल रिजल्ट्स हम कॉज करते हैं। उनको आपने सुना और उसके बाद आपका मन ये किया कि मैं भी इन्हीं जैसा बनूं, मैं भी लोगों को ऐसी जीने का ढंग करेक्ट बताऊं। करेक्ट। चिंता छोड़ो, सुख से जियो, आर्ट ऑफ लिविंग। जी राजीव जी, मैंने ये देखा है, देखिए आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, आपने इतना अनुभव पाया है, आपको कुछ ना कुछ चीज़ सेटिस्फाई करती होगी उसके काम के अंदर। अब मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मैं आपकी बात तो नहीं कर सकता, मैंने आपकी लाइफ नहीं जी, मैंने अपनी लाइफ जी है। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको अपना पर्पस ऑफ लाइफ मिल जाता है अपने काम के थ्रू, तो काम फिर काम नहीं रह जाता। बिल्कुल। तो मेरे को जब सेटिस्फैक्शन मिलनी शुरू हुई जब मैं देखता था कि किसी पर्सन ने एक्चुअल में डिफरेंस मेक हुआ है उसकी लाइफ में, कोई पर्सन सालों से परेशान था किसी चीज को लेकर और वो उसको एकदम फ्री हो गया उस एरिया में, वो हैप्पीनेस आ गई उसके पास, वो स्माइल आ गई उसके फेस पे, जो कोई भी चीज नहीं ला पाई। मैंने उसको एक बात करी, उससे कॉन्वर्सेशन करी और उसके मुंह पे स्माइल आ गई, और नॉट ओनली स्माइल आ गई, वो एक्चुअली में एक रिजल्ट कॉज करके आया। मे बी अपनी मदर से कनेक्ट हो गया, मे बी अपनी वाइफ से कनेक्ट हो गया, मे बी अपने बिजनेस में जो डर रहा था वो डर खत्म हो गया उसका, एंड ही कुड कॉज मैजिकल रिजल्ट्स। तो वो सेटिस्फैक्शन जब मिलती है तो मेरे लिए वही पर्पस ऑफ लाइफ बन गया। जी जी। लेकिन एक चीज़ मुझे हैरान करती है कि एक और स्पेशलाइज्ड फील्ड जो बहुत लंबे अरसे से चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा था, इससे पहले कि जब ये लाइफ कोचेज आए और ये मोटिवेशनल स्पीकर्स आए, जिनको हम साइकोलॉजिस्ट्स या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बोलते थे। अगर तो किसी बंदे की मानसिक रोग ऐसा है कि उसको मेडिकेशन की ज़रूरत है तो फिर तो चलो साइकेट्रिस्ट हैं ही हमारे पास, मानसिक रोगों के माहिर डॉक्टर। लेकिन उसके बिना जो कुछ इस तरह की बातें होती हैं रिलेशनशिप में, बिना कारण को मन का उदास रहना या कुछ इस तरह के इश्यूज़, उसके लिए हमारे पास क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पंजाबी च असी मनोविज्ञानी कह दें। तो फिर ये
इसका मतलब ये है कि ये जो इतनी डिग्रियां करके मनोविज्ञानी बनते थे, साइकोलॉजिस्ट बनते थे, अब उनको रिप्लेस कर रहे हैं ये लाइफ कोचेस, रिलेशनशिप कोचेस, इंटीमेसी कोचेस। सर मेरे को नहीं लगता हम रिप्लेस कर रहे हैं उनको। मेरे को ये लगता है उनकी अपनी अहमियत है और हमारी अपनी अहमियत है। लाइफ कोचेस की अपनी अहमियत है, साइकोलॉजिस्ट की अपनी अहमियत है। उनके पास जो डिग्रीज हैं, जो क्वालिफिकेशंस हैं, अब इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा अब लोगों के पास ज़्यादा चॉइसेस हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मैं तो कंफ्यूज हो गया। मेरे को लग रहा है कि मेरे ही कुछ कमियां हैं जिसके कारण मेरे दोस्त मुझसे टूट रहे हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हो रहे हैं जी। तो अब तो मैं तो चॉइस के चलते मैं तो कंफ्यूज हो गया। इससे पहले तो मुझे पता था कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊं, अगर वो समझेगा ठीक कि मुझे मेडिकेशन की ज़रूरत है तो ही और शी विल रेफर मी टू साइकेट्रिस्ट। तो साइकेट्रिस्ट देखेगा कि क्या मेडिकेशन उसने मेरी करनी है, क्या मेरा इलाज करना है, काउंसलिंग उसने करनी है कि साइकोलॉजिस्ट ने करनी है। अब तो मुझे यही नहीं पता कि मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊं, साइकेट्रिस्ट के पास जाऊं, लाइफ कोच के पास जाऊं, रिलेशनशिप कोच के पास जाऊं। मेरी तो प्रॉब्लम और बढ़ गई, तो मैं सिलेक्शन कैसे करूंगा सर? सर इसको दूसरी तरीके से भी देखा जा सकता है। हाँ। अगर आप देखें हिंदुस्तान में साइकोलॉजिस्ट के पास ज़्यादातर लोग नहीं जाते हैं। नहीं, उनकी अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम थी। जैसे सारे इतने बड़े शहर में सिर्फ मेरे को 2 ही साइकोलॉजिस्ट के एड्रेस पता है। अवेलेबिलिटी की वजह से नहीं जाते हैं लोग। इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई है। वो दिखाना नहीं चाहते किसी को कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है। लाइफ कोच या मोटिवेशनल स्पीकर या बिजनेस कोच के पास जाना आसान है। लेकिन वैसे जैसे कहूँ कि आज सागर त्यागी जी का लेक्चर है, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ तो सभी लोग कहेंगे यार क्या बात है, मतलब बड़ा कूल है ना। बिल्कुल। अगर मैं कहूँ यार आई एम हैविंग सम प्रॉब्लम, मैं साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास, पहली बात तो मैं छुपाऊंगा इस बात को। मोस्टली लोग छुपाते हैं, और अगर हम खुद नहीं छुपाते हमारे फैमिली मेंबर्स छुपाने लगते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है, उसकी बेटी को कुछ प्रॉब्लम है, वो उसको भी पता है और मुझे भी पता है, लेकिन वो कई सालों तक उसको किसी को नहीं बता रहा था। मेरे को पता था क्योंकि मेरा दोस्त है। अच्छा, आपके पास अगर कोई इस तरह का बंदा मिलता है कि आपको पता चलता है कि यार इसको एक डॉक्टर की जरूरत है, एक लाइफ कोच की जरूरत नहीं है, तो क्या आप उसको कहते हो कि भैया आप डॉक्टर के पास जाओ? 100%। यू आर नॉट माय केस। 100%। जी। सी मेरा काम लोगों को तंग करना नहीं है, मेरा काम लोगों को परेशान करना या उनसे कुछ निकालना नहीं है, मेरा काम लोगों को कंट्रीब्यूट करना है। जी। सो ये मुलाकातों का दौर जारी रहेगा। अंत में सागर त्यागी जी, एक सवाल जो मेरे जहन में घूम रहा है वो ये है कि अब चलो एक पहली दूसरी जनरेशन आ गई। जो हम इंडिया की बात करें तो मेरी जो जानकारी में शिवखेड़ा से मैं शुरुआत करूंगा और सागर त्यागी जी तक का जो सारा सफ़र है, क्या आने वाले समय में कहीं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में भी कुछ इस तरह के कोर्स शुरू हो सकते हैं या हो चुके हैं जो लाइफ कोच या मोटिवेशनल स्पीकर या इस तरह के रिलेशनशिप कोचेस को पैदा करें, उनको क्वालिफाई करें? हालांकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि लाइफ कोच बने, मोटिवेशनल स्पीकर बने, ये तो हमें एडवर्टीजमेंट मिलती है। क्या किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में, किसी यूनिवर्सिटी में मान्यता प्राप्त कोई कोर्स शुरू हुआ है या होने की संभावना है? बहुत है सर, बहुत है। इनफैक्ट कॉर्पोरेट सेक्टर में तो बहुत हो चुका है शुरू। जी। इनफैक्ट मैं बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट को जानता हूं जिसके अंदर पूरा डिपार्टमेंट है जो ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रेनिंग, मोटिवेशनल ट्रेनिंग, इंस्पिरेशनल कोचिंग ये देते हैं अपने स्टाफ को, क्योंकि उन्हें पता है कि इसकी ज़रूरत है उनको। इनफैक्ट मैं तो इस चीज़ के लिए भी बहुत चीज़ बोलता हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में आना बहुत ज़रूरी है। इसको मैं बोलता हूँ ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग। ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग इज़ व्हाट आई टॉक अबाउट, आई क्रिएट फॉर पीपल। हमें जो कॉलेज और स्कूल में मिलता है वो होता है इन्फॉर्मेटिव लर्निंग विद लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशनल इज मोर एक्सपीरियंशियल, वेयर यू गेट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ विच गिव्स यू अ डिस्कवरी, विच गिव्स यू अ पॉसिबिलिटी टू लिव फ्रॉम। जी। तो वो चीज़ें आ भी चुकी हैं और मेरे हिसाब से अगले 10 साल में बहुत फैलने वाली हैं। जी। सो सवाल बहुत से थे, बहुत लंबी मुलाकात आपसे हो सकती है, और कैसे आप लोगों को वो डिलीवर करते हो जो उनको पूरी ज़िंदगी, एक भरपूर ज़िंदगी जीने के लिए सहायक होता है, ये भी बहुत सारे सवाल थे। लेकिन एक सीमित समय में आज आपसे एक तारुफ ही एक हुआ और मेरे कुछ सवालों के जवाब कुछ हद तक मुझे मिले। लेकिन फिर भी मेरे लिए आज भी ये जो एक फील्ड है वो थोड़ा सा एक ग्रे एरिया सा ही है कि ये क्या, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। और वाकई जब हम इन लोगों को सुनते हैं तो लगता है कि यार वाकई ये चीज़ें ऐसी थी जो आज तक हमने नहीं जानी थी, नहीं सुनी थी, या इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। तो ये एक शुरुआत मैं कहूँगा अभी तक तो हुई है ये सारी, और आने वाले वक्त में शायद आप लोगों के सहयोग से
हमारे देश में मानसिक रोग शायद कम हो जाएंगे, शायद आत्महत्याएं कम हो जाएंगी, शायद एक बेहतर ज़िंदगी जो शांतिपूर्वक जीने का एक जो चूहा दौड़ लगी हुई है उससे शायद कुछ राहत मिलेगी। सो इस उम्मीद के साथ श्री सागर त्यागी जी, आपने अपनी व्यस्तताओं से हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला और आप हमारे स्टूडियो में भी आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी हाथ तो मैंने जोड़ दिया, लेकिन जाते जाते अगर दिल की कोई बात आपने करनी हो साझी हमारे दर्शकों से तो कर सकते हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मैं बस लास्ट में ये बोलना चाहूँगा कि जैसे आपने बात की कि आत्महत्या होती हैं बच्चे, मेरा दिल टूटता है जब मैं देखता हूँ कि छोटे बच्चे 15 साल, 16 साल, 18 साल पढ़ाई की प्रेशर की वजह से, फेलियर ना हो जाए उसकी प्रेशर की वजह से अपनी ज़िंदगी ले लेते हैं। तो मैं बस ये बोलना चाहूँगा उन सब बच्चों को भी और सभी लोगों को कि लाइफ में एक हैप्पी लाइफ और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना पॉसिबल है, और उसके लिए मैंने पर्सनली स्टैंड लिया है। और मेरे आपको ये इल्तिजा है कि आप सपोर्ट देखें, ढूंढें। आज की डेट में, सोशल मीडिया के डेट में बहुत सपोर्ट अवेलेबल है, और कभी भी अपने आप को अकेला ना समझें कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा या कर पा रही या मेरे पेरेंट्स से नहीं डिस्कस कर सकते। आप ऑनलाइन जाके भी डिस्कस कर सकते हैं, अपने आप को फ्री कर सकते हैं, अपने आप को एक पॉसिबिलिटी से कनेक्ट कर सकते हैं, सो दैट यू कैन लिव अ वेरी ब्यूटीफुल एंड फ्री लाइफ rather than being under stress. जी, so that's what I want. So जिंदगी कैसे जीनी है दर्शकों, ये आपने डिसाइड करना है। योग करके कोई इसका हल ढूंढना है, किसी धर्मगुरु के पास जाना है, किसी लाइफ कोच के पास जाना है, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, और ज़रूरत पड़ती है तो साइकेट्रिस्ट के पास जाना, तो चलो हमारी मजबूरी है, चॉइस नहीं होती। तो ये सारा कुछ आपने देखना है। लेकिन आज के युग में, जैसा कि सागर त्यागी जी ने कहा कि हमारे पास विकल्प बहुत हैं, और कोई आज की दौर में ये बहाना नहीं हो सकता कि ज़िंदगी कैसे जी जाए मुझे किसी ने बताया ही नहीं, मैं कहीं से जान ही नहीं सका। तो आज की तारीख में ये बहाना नहीं है। तो आज आपके पास बहुत चॉइसेस हैं, बहुत विकल्प हैं। सो एक बार फिर सागर त्यागी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।